Weather and climate, the most important and essential parts of our lives. And India is a country where weather and climate, being exceptionally complex, they affect the economy and overall growth of the nation and definitely our life. The Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, an autonomous body of Ministry of Earth Sciences, Government of India, has been a pioneer institute and a center of excellence for more than 5 decades in weather and climate sciences. It is committed to fulfilling the mission of Ministry of Earth Sciences for IITM to excel in basic research on the ocean atmosphere climate system required for improvement in weather and climate forecasting. Today, IITM is a global force for its expertise in both modeling and experimental research. It has formed collaborations with various national and international organizations, and its scientists have stamped their presence in several international scientific forums. In a country like India, which has an agriculture-based economy, the monsoons are especially important. One key area of research at IITM has been its Monsoon Mission project. In the past few years, under the Monsoon Mission project, the Institute has developed the country's first coupled forecast model for making high-resolution predictions about the Indian monsoons on different space and time scales, with possibly the best skill for seasonal monsoon forecasts in the world. The Institute has developed the capacity for providing prediction of heat waves and application of extended range forecast in health sector, improved Genesis Potential Index for cyclogenesis prediction, and application of dynamical downscaling technique to improve the prediction of extreme weather events. The Institute has also developed a high-resolution global probabilistic weather prediction system through which the block-level forecast of rainfall probabilities have reasonable skill in accurate forecasting of tropical cyclones. For the first time in India, under the Monsoon Mission Phase 2, dynamical lightning and thunderstorm prediction system has been developed with the extremely high-resolution model, and real-time predictions are given. The past few years have also been extremely successful in the field of climate change observations. The Center for Climate Change Research has developed India's first Earth system model for long-term climate simulations and projections. It is the first time that any Indian climate model will participate in IPCC or Intergovernment Panel of Climate Change report and will contribute in coupled model intercomparison project experiments. IITM has also initiated a special program, MetFlux India, to study greenhouse gases and biogeochemical processes by establishing flux towers in different ecosystems. Tree ring-based paleoclimate studies at IITM have also been successfully studying the developed past climate chronologies. In the past few years, IITM has also conducted various researches in understanding the role of Indian Ocean on the Indian summer monsoon rainfall and regional climate. Through the continuous efforts of scientists in studying the air-sea coupled processes associated with the decay phase of El Nino and its association with ISMR in different time scales, the department has achieved enhanced monsoon forecasting. Lightning being the largest killer among natural calamities, IITM has successfully established a unique system for studying and predicting lightning and thunderstorms in Maharashtra. It is expanding the same across the nation. A small vertical wind tunnel has been established to study microphysical processes. IITM has also expanded its flagship project, SAFAR, which serves as the apex forecaster of air quality in Delhi, Mumbai, Pune and Ahmedabad to provide 3 days advance air quality forecast to reduce environmental risks to society. Recently, SAFAR Ahmedabad was dedicated to the nation by the Honorable Minister of Earth Sciences along with the initiation of Air Health Alert System Program, SAHAS.
SAFAR also has the distinction of developing the first high-resolution 400-meter emission inventory of criteria pollutants for Delhi NCR and has provided the relative share of various polluting sources. The project is successfully giving predictions for extreme pollution events such as dust storms. In recent times, IITM has broadened its scope and taken a lead in broad aspects of atmospheric chemistry by launching the National Program on Atmospheric Chemistry under the Metropolitan Air Quality and Weather Services. The weather and air information is now reaching hundreds of school students in SAFAR cities by IITM's School Flag Awareness Program. The ENVIS Center at IITM is contributing to the Green Skill Development Program of Government of India to provide targeted training to unemployed youth and society. The last few years of the institute have also been successful in enhancing the research capacity of cloud aerosol interaction and precipitation enhancement experiment. The establishment in Solapur has ground-based laboratory with state-of-the-art latest technology, including a dual polarized C-band radar, rain gauge network, and 2 aircraft equipped with cloud physics and seeding instruments. The institute is also studying the ion optical character of aerosols. IITM has a branch office in Delhi where several state-of-the-art laboratories related to aerosol research are operational. A high-altitude cloud physics laboratory in Mahabaleshwar, Maharashtra, where clouds are at the surface, also provides continuous observations on various cloud microphysical and dynamical parameters which are essential to develop a scientific understanding of rain formation and related weather modification. IITM is also conducting the winter fog experiment at the IGI Airport, Delhi to study fog formation and its possible forecast and dispersion. Such forecasting can potentially benefit the air, rail and road transport. IITM is also studying the dynamics of atmospheric air flows through simulations. For this, a fluid dynamics laboratory is being established at IITM. The strength of all the high-tech modeling and forecasting system depends on power of computing. The technology and computing support of IITM is one of the best available across the world. The institute hosts India's fastest and first multi-petaflops supercomputer, HPC Pratyush, which is exclusively dedicated to weather and climate research and services. The institute has also developed various products and models in the last few years that are benefiting the society in more ways than one. An advanced SAFAR air quality system is established at Chandni Chowk in New Delhi and dedicated to the nation by the Honorable Minister of Earth Sciences. IITM has recently launched an advanced air quality early warning system for Delhi with data assimilation. IITM has also developed a special program for capacity building and strengthening the human resource base called Development of Skilled Manpower in Earth System Sciences for the organization and the ministry. The Institute's administration and infrastructure support are equally essential and help in the development of the organization. The Institute also participates in social activities like Palki Varkari, Swachh Bharat Abhiyan, and has won many awards. To support scientists, IITM has the support of its qualified engineering team. The team, its efforts, and the achievements are not just for today, but have impactful future frontier research plans as well. The Indian Institute of Tropical Meteorology, we have many exciting programs lined up for the future, which includes setting up the atmospheric research testbed at Bhopal, buying a new aircraft, doing further work on climate change, and also on improving our forecasts. We also have a plan. For all this we need high performance computing. So we also want to buy a new computer which could be about an order of magnitude bigger than this. We look forward to a very exciting time ahead. We have done
quite a bit of research, and we hope to do further exciting research in the days to come. IITM will continue to excel in basic research on advanced areas of weather and climate, with focus on developing advanced capabilities for predicting extreme weather events, climate projections, and specific applications for the nation. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम फॉग प्रेडिक्शन में। प्रकृति और उसकी सुंदरता हमेशा से हमारे दिमाग में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। अगर खराब मौसम को छोड़ दें तो प्रकृति की गोद में बैठने से न सिर्फ हमारी थकान और चिंताएं दूर होती हैं, बल्कि हम खुद भी तरोताजा महसूस करते हैं। लेकिन जहां प्रकृति एक खुशनुमा पहलू हमें जिंदगी से भर देता है, वहीं उसका दूसरा पहलू हमें परेशान भी करता है। इसी में से एक है फॉग, जो नॉर्दर्न इंडिया को हर साल ठंड के मौसम में अपनी चपेट में ले लेता है और लोगों के चलने की रफ्तार को कम कर देता है, जिसका बुरा असर इकोनॉमी पर भी पड़ता है। अगर हम फॉग के आने को सही पहले ही जान लें तो न सिर्फ होने वाले नुकसान को कम कर पाएंगे, बल्कि लोगों की जिंदगियों को भी आसान कर पाएंगे। अब वैज्ञानिकों ने फॉग का सही अनुमान लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन ये हुआ कैसे, आइए देखते हैं। फॉग, कोहरा या धुंध आम लोगों के लिए एक पहेली और रहस्य रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि धुंध में घने अंधेरे ने भारतीय सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों को जन्म दिया, जो आज मील का पत्थर हैं। लेकिन वास्तविक तथ्य यही है कि कोहरा मौसम का एक रौद्र रूप है, जिसे भारत को हर सर्दियों में झेलना पड़ता है। दिसंबर से जनवरी के दौरान अनुकूल मौसमी दिशाओं के कारण सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में कोहरे का विकट प्रकोप होता है। भारत के उत्तरी भाग, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक विस्तृत सिंधु गंगा के मैदान सर्दियों के दौरान कोहरा बनने के सबसे अनुकूल स्थान हैं। सर्दियों में सिंधु गंगा के मैदानों में ये बारी बारी कम और उच्च दाब की दशाओं की श्रृंखला पनपती है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर से चलकर क्षेत्र में गहरी धुंध और कोहरा उत्पन्न करती है। इस दौरान तापमान भी लगभग न्यूनतम पर पहुंच जाता है और पश्चिमी विक्षोभ की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। ये दशाएं सीमावर्ती पर्त के अंदर प्रदूषकों के जमा होने के लिए आदर्श हैं और अक्सर सिंधु गंगा के मैदानों में कोहरा बनने का कारण बनती हैं। प्रत्येक वर्ष कोहरे के प्रकोप से अनेक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं और आर्थिक नुकसान होता है, और एरासोल का देश भर में प्रवाह हो जाता है। कोहरा बनने से जुड़ी अनिश्चितताओं और इसके भौतिक रासायनिक गुणों से संबंधित पहलुओं ने वैश्विक विज्ञान समुदाय को आकर्षित किया है। सिंधु गंगा के मैदानों में कोहरा बनना बहुत अनूठा है। दुनिया में कहीं भी एक ही समय में कोहरे की इतनी बड़ी चादर नहीं बनती और अवधि भी इतनी लंबी नहीं होती। कई बार दिल्ली या लखनऊ के हवाई अड्डे रात में 8 बजे बंद कर दिए जाते हैं और अगले दिन 10 बजे खुलते हैं, तो अवधि बहुत लंबी है। हम सभी कोहरे से परिचित हैं, लेकिन क्या कभी सोचा कि यह क्या है, कैसे बनता है? सीधे समझें तो कोहरा जमीन पर तैरता बादल है। मौसम वैज्ञानिक रूप से जब दृश्यता 1000 मीटर से कम और सापेक्षिक आर्द्रता 75% से अधिक हो जाती है तो हम इसे कोहरा कहते हैं। परंतु फॉग और स्मोक के मेल को स्मॉग कहा जाता है, जिसमें कम दृश्यता के साथ आर्द्रता भी कम होती है। बादल की तरह कोहरा भी पानी की लाखों सूक्ष्म बूंदों या बर्फ के कणों से बनता है, जो धरती की सतह के पास की हवा ठंडी होने और इनके भीतर की जल वाष्प के संघनित होने से बनती है। हल्की होने के कारण ये हवा में तैरती रहती है। कोहरा एक जटिल लेकिन सामान्य मौसमी घटना है, जिसमें हवा में दृश्यता 1 किलोमीटर से भी कम हो जाती है।
तापीय विकिरण से रात भर भूमि की सतह का ठंडा होना कोहरा बनने की विशिष्ट आवश्यक दशा है, जो सतह के पास की हवा को भी ठंडा कर देती है। इससे हवा की नमी या जल वाष्प धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, जो सामान्य रूप से हवा में मौजूद होती है और जिसे आमतौर पर आर्द्रता कहा जाता है। धीरे धीरे जब जल वाष्प से हवा पूरी तरह संतृप्त हो जाती है तो पानी की बूंदें संघनित होने लगती हैं और यह गैस एक बार फिर पानी या हवा में बदल जाती है। पानी की यही बूंदें हवा में तैरती रहती हैं और घनी धुंध या कोहरे की तरह नजर आती हैं। इसलिए हम कोहरे को दिखाई देने वाला एक ऐसा पुंज कह सकते हैं जिसमें बादल जैसी पानी की बूंदें हवा में या सतह के पास तैरती रहती हैं। कोहरा कई प्रकार का होता है और प्रत्येक अलग दशा में बनता है। उत्पत्ति और विकास के आधार पर विश्व में 6 प्रकार के कोहरे की पहचाने की गई हैं, लेकिन भारत में आमतौर पर रेडिएटिव और एडवेक्टिव 2 प्रकार का कोहरा होता है। रेडिएटिव कोहरा साफ, ठंडी और अपेक्षाकृत शांत दशाओं वाले स्थान पर बनता है, जबकि ठंडी सतह के पास की जल वाष्प ठंडी होकर संघनित होने लगती है। यह कोहरा स्थानीय स्तर पर ज्यादातर सुबह के समय बनता है और कुछ घंटों में छट जाता है। एडवेक्टिव कोहरा तब बनता है जब नम गर्म हवा अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर बहती है और ठंडी हो जाती है। इस दशा में हवा नमी को धारण नहीं कर पाती और संघनित हो जाती है। इस तरह कोहरा बनता है। आमतौर पर नवंबर के मध्य से दिसंबर तक और फिर फरवरी में उत्तर भारत में रेडिएटिव कोहरा बनता है, जबकि मध्य दिसंबर से जनवरी अंत की कड़ाके की सर्दी के दौरान एडवेक्टिव और रेडिएटिव कोहरे के संयोग से उत्तर भारत ठंडा रहता है। दृश्यता में भारी कमी आने से गंभीर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। रेलगाड़ियां रुकने से यात्रा में लंबी देरी होती है और उड़ानों को रद्द या मार्ग परिवर्तन करना पड़ता है। कृषि कार्य भी सार्थक रूप से प्रभावित होते हैं। बिजली क्षेत्र भी प्रभावित होता है। इन सब से लोग गहरी परेशानी में फंस जाते हैं और अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। घना कोहरा, जिसमें दृश्यता 200 मीटर से भी कम हो जाती है, आम जनता, मौसम वैज्ञानिकों और संबंधित एजेंसियों सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। उत्तर भारत में हर साल औसतन 62 से 80 दिन कोहरा पड़ता है, जिसमें दृश्यता 1000 मीटर से भी कम हो जाती है, परंतु इनकी संख्या, गहनता और अवधि निरंतर बढ़ रही है, जिससे संबंधित एजेंसियों में व्याकुलता है। भारत में कम दृश्यता वाली सुबहों की दर 6.7% से बढ़कर 27.3% हो गई है। इस क्षेत्र में भूमि उपयोग में बदलाव और प्रदूषण में बढ़त मुख्य रूप से कोहरे में बढ़ते प्रकोप के लिए जिम्मेदार है। उत्तर भारत के अधिकांश भाग और उत्तर पूर्व भारत में मुख्य रूप से 3 नदियां बहती हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। इससे क्षेत्र में अधिक नमी बनी रहती है, जिससे कोहरा लंबे समय तक टिका रहता है। इसलिए हाल ही में कोहरे के पूर्वानुमान को मौसम संबंधित अनुसंधान में प्रमुखता दी गई है। हमने कोहरे के 2 से 50 माइक्रोन व्यास वाले कणों को मापने के लिए क्लाउड ड्रॉपलेट प्रोब का इस्तेमाल किया और इससे हमें हर सेकंड डेटा मिलता रहा। इससे हमने कोहरे में उसकी बूंदों में आकार के वितरण को देखा। इससे कोहरे की सूक्ष्म भौतिकी सामने आई और समय के साथ साथ ये कैसे बना ये भी पता चला। हम बूंदों के आकार के वितरण को आधार बना सकते हैं। ये कोहरे के पूर्वानुमान में सहायक होगा। हाल ही में हवा में बड़ी मात्रा में प्रदूषकों, धुआं और एरासोल मौजूद होने के कारण कोहरे का रूप बिगड़ गया है। इसे स्मॉग कहते हैं और यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए, विशेष रूप से सांस के रोगियों के लिए बहुत खतरनाक है। कम तापमान और कोहरे के कारण सुबह सैर पर जाने वालों के लिए कोहरे की मोटी चादर दमा के दौरे और सांस की अन्य समस्याओं की वजह बन जाती है। कोहरा अपने आप में सेहत को प्रभावित नहीं करता, लेकिन कोहरे में मौजूद प्रदूषण दमा और सांस के रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्मॉग में मौजूद ओजोन के कारण इससे संपर्क में आने पर कई प्रकार की अल्पकालिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऊपरी वातावरण में मौजूद ओजोन उपयोगी होती है, लेकिन जमीन के पास मौजूद होने पर यह हानिकारक हो जाती है। हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ,
हमारी सांस की समस्याओं पर इसके प्रभाव को कम अवश्य कर सकते हैं। हमें मौसम के पूर्वानुमान को सटीक बनाकर इससे एक कदम आगे रहने की जरूरत है। जब कोहरे में धुआं ज्यादा होता है तो इससे बुरे प्रभाव पड़ते हैं, परंतु कड़ाके की सर्दी में यह जब छंटता है तो हवा को साफ करने का काम करता है। रेगिस्तानी इलाकों में कोहरे के बादलों से पानी प्राप्त किया जा सकता है, जैसा चिली में किया जा रहा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारा खास प्रोग्राम फॉग प्रेडिक्शन ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रोग्राम फॉग प्रेडिक्शन में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। अब हम देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा चलाए गए सुधार कार्यक्रम में पिछले 4 सालों में फॉग की फोरकास्टिंग स्किल्स में क्या-क्या सुधार हुआ है। हाल के वर्षों में जलवायु वैज्ञानिक आपसी सहयोग द्वारा कोहरे को बेहतर ढंग से समझने और इसके पूर्वानुमान को सुधारने का कार्य कर रहे हैं। कोहरे की अवधि का सटीक पूर्वानुमान अभी संभव नहीं है, लेकिन हवाई उड़ानों और परिवहन पर इसके प्रभाव को न्यूनतम करने की तैयारी चल रही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाओं के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में 2010 से 2014 की सर्दियों के मुकाबले 2014 से 2018 के दौरान कोहरे की निगरानी और पूर्वानुमान में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। ये परियोजनाएं हैं 13 स्वदेशी रनवे विजिबिलिटी मापने वाले दृष्टि उपकरणों की स्थापना, विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट यानी वाईफेक्स, पूर्वानुमान प्रदर्शन योजना कोहरा 2014 से 2018 और आरजीबी फॉग प्रोडक्ट के लिए इनसेट 3D आधारित कोहरा पता लगाने की नई प्रणाली। हाल ही में 4 वर्षों में कोहरा पूर्वानुमान के सामान्य कौशल में सुधार हुआ है। देश के 2 प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD नई दिल्ली और भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे ने संयुक्त रूप से कोहरे के पूर्वानुमान कौशल को सुधारने का बीड़ा उठाया है। भारत में IGI हवाई अड्डा सबसे अधिक प्रभावित होता है, इसलिए उसे प्रयोग के प्राथमिक स्थान के रूप में चुना गया है। कोहरा बनने के विभिन्न कारणों और मापदंडों को लगातार 3 सर्दियों तक जांचने परखने के लिए वर्ष 2015 से 2018 के दौरान विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट यानी वाईफेक्स नाम से एक संयुक्त मिशन लागू किया गया। यह महत्वपूर्ण है कि हम कोहरे के बारे में जानें, इसके लक्षणों और बनने की प्रक्रिया को समझें और जानें इसके पूर्वानुमान के बारे में। इसको ध्यान में रखते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वाईफेक्स नामक प्रयोग शुरू किया है। वर्तमान में 2 स्थानों पर यह प्रयोग जारी है, एक तो दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर और दूसरा हिसार में। यहाँ कोहरे से संबंधित वातावरणीय दशाओं और कोहरा बनने के कारणों से संबंधित डेटा एकत्र किया जाता है।
हम केवल फील्ड प्रयोगों पर ही निर्भर नहीं है, जहां हम आधुनिक उपकरणों की सहायता से डेटा एकत्र करते हैं, लेकिन हम इसका पूर्वानुमान भी करते हैं और मॉडल विकसित करते हैं। इन पूर्वानुमानों के प्राप्त डेटा पर उपयोग करके हम विभिन्न मापदंडों के निर्धारण द्वारा इसमें सुधार का प्रयास करते हैं। और हम दृश्यता पर भी ध्यान देते हैं। जब हम कोहरे के बारे में बात करते हैं तो दृश्यता हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ एकत्र की जा रही जानकारी को हम मापदंडों का सुधार करने में उपयोग करने वाले हैं, ताकि हमें कोहरे के बारे में बेहतर समझ हो और इसका पूर्वानुमान कर सकें कि अब कोहरा कब पड़ने वाला है, किस दिन पड़ेगा और कितने घंटों के लिए। वर्ष 2015 से 2018 के दौरान लगातार 3 सर्दियों में IITM और IMD ने वाईफैक्स का सफल और प्रभावी क्रियान्वयन किया। विश्व स्तरीय अवलोकन सुविधाओं की सहायता से कोहरे के पूर्वानुमान को सुधारा जा सका। वाईफैक्स की सहायता से कोहरे के विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक पहलुओं को बेहतर ढंग से समझा जा सका। वाईफैक्स के अंतर्गत वैज्ञानिक विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से वातावरण, एरोसोल और आपेक्षी आर्द्रता तथा तापमान जैसे मौसमी कारकों पर प्रयोग करके कोहरे की सूक्ष्म भौतिकी पर अध्ययन कर रहे हैं। दरअसल एरोसोल कोहरे के बनने और मौजूद रहने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, इसलिए कार्बोनियस और सल्फेट जैसे एरोसोल्स पर अध्ययन किए जा रहे हैं। वाईफैक्स 2 उद्देश्यों के साथ प्रारंभ किया गया। पहला, कोहरे का अत्यंत निकट का पूर्वानुमान, जैसे 6 घंटों का, और इसका विभिन्न समय और स्थानों पर सर्दियों के कोहरे का पूर्वानुमान, ताकि विमानन, परिवहन और अर्थव्यवस्था पर कोहरे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के साथ कोहरे से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करके मानव जीवन को बचाया जा सके। IGI हवाई अड्डा को संबंधित आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस किया गया है, क्योंकि गहरे कोहरे से यह सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इन वाईफैक्स में हमारे पास कोहरा बनने से छटने तक का पूर्वानुमान लगाने के लिए हाई रेजोल्यूशन न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शंस मॉडल यानी WRF है। वाईफैक्स के उपकरणों से लिए गए आंकड़ों का उपयोग करते हुए हमने मॉडल की पुष्टि और इसमें सुधार किए, ताकि कोहरे का सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सके। टेक्नोलॉजी पैकेज में रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म सहित जमीन पर लगे अनेक उपकरण शामिल हैं। विभिन्न मौसम विज्ञानी दशाओं जैसे रेडिएशन बैलेंस, टर्बुलेंस, कोहरे की बूंदों और एरोसोल की सूक्ष्म भौतिकी और कोहरे के पानी का रसायन को मापने के लिए उपयुक्त स्थानों पर प्रमुख सेंसर लगाए गए हैं। इन सभी पहलुओं की बेहतर समझ विकसित होने से अब कोहरा बनने, गहराने और छटने की वातावरणीय दशाओं पर एक पूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या विकसित हो चुकी है। इससे पहले इन सभी मौसम विज्ञानी पहलुओं पर हमारी समझ सीमित थी, जिससे कोहरे का पूर्वानुमान लगाना कठिन था। आवश्यक गणनाओं में उपलब्ध होने से अब वैज्ञानिक कोहरे के पूर्वानुमान के कौशल को सुधारते हुए मॉडल विकसित कर सके हैं। परिणाम स्वरूप वर्ष 2017 से 2018 की सर्दियों के दौरान IGI हवाई अड्डा नई दिल्ली में कोहरे की निगरानी और पूर्वानुमान में उल्लेखनीय सुधार हुआ। दिल्ली क्षेत्र में वाईफैक्स के अंतर्गत देखा गया है कि कोहरा पड़ने के तुरंत पहले सल्फेट कणों की सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है, जबकि क्लोराइड के महीन कणों की सांद्रता में अचानक भारी कमी हो जाती है। अब ये अच्छी तरह समझ में आ गया है कि क्लोराइड की सांद्रता का कम होना ये संकेत है कि कोहरा पड़ने की संभावना बन गई है, और ये भी देखना चाहिए कि इस समय सल्फेट कणों की सांद्रता अधिक हो गई हो। वाईफैक्स को दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू किया जा रहा है और स्थानीय मौसमी दशाओं के अनुसार इसे देश के अन्य भागों में दोहराया जा सकता है। अब हम इस डेटा का उपयोग करके पूर्वानुमान जारी करना चाहते हैं, जिसे रेलवे और सड़क परिवहन में इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि दृश्यता का कम होना चिंता की बात है। दिल्ली और हिसार से प्राप्त डेटा से हम मॉडल सुधार रहे हैं, और जिससे कोहरे और दृश्यता का पूर्वानुमान आज से काफी बेहतर हो जाएगा। सुधरे हुए मॉडल से हम कोहरे और दृश्यता के बेहतर पूर्वानुमान की अपेक्षा कर रहे हैं। IITM और IMD के अलावा नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग NCMRWF, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, GMR, IGI एयरपोर्ट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER मोहाली ने भी वाईफैक्स की सफलता में योगदान दिया है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का,
लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि देश में स्वदेशी तकनीक द्वारा बनी दृष्टि क्या है और ये कैसे काम करती है। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार देश में विकसित की गई नई विजिबिलिटी मेजरिंग सिस्टम दृष्टि क्या है और कैसे ये एयरपोर्ट ऑपरेशंस में इस्तेमाल हो रही है। गहरे कोहरे का प्रकोप रनवे पर कम दृश्यता के कारण विमानन सेवा को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इस दशा में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC द्वारा विमान को सुरक्षित उतरने या उड़ने के बारे में सूचना आधारित सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरूप उड़ानों में देरी, निरस्तीकरण या मार्ग परिवर्तन होता है, जिससे विमानन क्षेत्र को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। विदेशी बाजारों में रनवे दृश्यता मापने वाले उपकरण उपलब्ध हैं, परंतु इनकी लागत और देखरेख के ऊंचे खर्च को वहन करना मुश्किल है। इस जरूरत को पूरा करते हुए CSIR राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं NAL बेंगलुरु ने दृष्टि नामक स्वदेशी रनवे दृश्यता प्रणाली का डिजाइन तथा विकास किया। देश के सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर दृष्टि की स्थापना के लिए CSIR, NAL और IMG ने मई 2014 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तकनीकी रूप से दृष्टि एक ट्रांसमिसोमीटर है जो वातावरण में प्रकाश संचरण से संबंधित कुछ मापदंडों को मापकर रनवे दृश्यता के रेंज का पता लगाता है। दृष्टि प्रकाश के संचरण या प्रकाश की तीव्रता में कमी के सिद्धांत पर काम करता है। कोहरा, बरसात या स्मॉग जैसी वातावरणीय दशाओं के कारण दृष्टि ट्रांसमीटर से दृष्टि रिसीवर तक पहुंचने वाली प्रकाश की तीव्रता घट जाती है, जो एक दूरी के बराबर होती है और पायलट को उड़ान भरते या उतरते समय रनवे पर इसी दूरी के बराबर दिखाई देता है। रनवे विजिबिलिटी रेंज का पता लगाने से कोहरे में भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरलाइंस को विमान संचालन में सहायता मिलती है। दृष्टि दृश्यता मापने वाली एक स्वदेशी नवीनमेशी कम लागत वाली और रखरखाव में कम खर्चीली आधुनिक प्रणाली है, जो 50 से 2000 मीटर रनवे विजिबिलिटी रेंज और 25 से 10,000 मीटर मौसम विज्ञानी ऑप्टिकल रेंज को स्वचालित रूप से मापती है। इसकी रिपोर्टिंग रेंज 30 मीटर की बेस लाइन के साथ 25 से 3000 मीटर तक है। दृष्टि में 4 मीटर तक की दृश्यता को मापने की क्षमता है। विदेशी प्रणालियों की तुलना में कम लागत के अलावा इसकी डिजाइन में मॉड्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स और वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का उपयोग करके इसके रखरखाव को आसान और कम खर्चीला बनाया गया है। नेट आधारित निगरानी और देश के किसी भी स्थान से रिमोट कंट्रोल द्वारा डेटा प्राप्त करने और रखरखाव की सुविधा इस प्रणाली की कुछ अनूठी खूबियां हैं, जो इसे वैश्विक बाजारों में उपलब्ध अन्य प्रणालियों से बेहतर बनाती हैं।
right from ऑप्टिकल से मैकेनिकल तक और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सॉफ्टवेयर में दृष्टि के विकास में हर कदम पर नई खूबियां डाली गई हैं। इसमें मॉड्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स है और इसकी कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने वाली प्रणाली भी है। एटीसी में बैठकर इसकी कार्यप्रणाली पर नजर रखी जा सकती है और नेट आधारित होने के कारण देश के किसी भी भाग से डेटा प्राप्त किया जा सकता है। हम डेटा के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं और रखरखाव का काम रिमोट से कर सकते हैं। दृष्टि हवाई अड्डों पर संचालक के लिए उपयोगी है। यह विमान चालकों को रनवे पर उपलब्ध दृश्यता की सूचना देती है। विमानों के सुरक्षित उड़ान भरने और उतरने के लिए रनवे पर उचित दृश्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड मीटरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सुरक्षित उड़ान भरने और उतरने के लिए सभी हवाई अड्डों के रनवे पर दृष्टि जैसे दृश्यता मापने वाले उपकरणों को लगाना अनिवार्य है। आधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त यह प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक्स और एयरपोर्ट इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। दृष्टि सभी वर्ग में हवाई अड्डों जैसे कैट 1, कैट 2, कैट 3A और B के लिए उपलब्ध है। इसमें विपरीत वातावरण दशाओं में भी 365 दिन 24 घंटे कार्य करने की क्षमता है। यह एक मजबूत प्रणाली है जिसमें खराब होने की बहुत कम संभावनाएं हैं और रख रखाव से लगभग मुक्त है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 20 हवाई अड्डों में 40 से अधिक रनवे पर दृष्टि ट्रांसमिसोमीटर्स की स्थापना की है। दृष्टि उत्कृष्ट स्तर का कार्य करती है और किसी भी विदेशी ट्रांसमिसोमीटर के समकक्ष है। ये कम खर्चीली है, इसके कल पुर्जे सस्ते हैं और इसे आसानी से स्थापित तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा सकता है। रख रखाव भी आसान है, खराब होने की संभावना बहुत कम है और खराब होने पर कुछ ही घंटों में इसे ठीक किया जा सकता है। दृष्टि का डेटा रनवे से एटीसी तक पहुंचाने के लिए लैंडलाइन और वाईफाई 2 संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। एटीसी द्वारा विमान चालक को सुरक्षित उड़ान भरने या उतरने के लिए दृश्यता की सूचना दी जाती है। दृष्टि आरवीआर कम दृश्यता की दशाओं में दृष्टि आरवीआर रनवे पर दृश्यता की रेंज को जानने में हमारी सहायता करता है। कैंपेगौड़ा बेंगलुरु में ये आरवीआर मापने का प्राथमिक उपकरण है। पहले हमारे पास आधारित उपकरण था जो बहुत भरोसेमंद नहीं था, जो बहुत कठिन था और इससे उड़ानों तथा अन्य संचालनों में अनावश्यक देरी होती थी। अब दृष्टि की सहायता से हमें विश्व स्तरीय आरवीआर मान प्राप्त होता है और हम कोहरे या खराब मौसम में कम दृश्यता की दशा में भी उड़ानों का संचालन जारी रखते हैं। इस पूरी तकनीकी प्रक्रिया में IMD दृष्टि की सहायता से अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यह हवाई अड्डों को नेविगेशन सुविधाएं प्रदान करता है। कोहरे के अलावा भारी बारिश, धूल भरी आंधी, स्मॉग या चक्रवात की दशाओं में भी दृष्टि सटीक जानकारी देता है, क्योंकि ये दशाएं भी रनवे पर दृश्यता में बाधा बनती हैं। रनवे पर दृश्यता में कोई भी बाधा आने पर दृष्टि इसे तुरंत माप कर रिपोर्ट भेजता है, मात्र 10 सेकंड में। इसमें लगा लाइट बल्ब हर मौसम में काम करता है। दृष्टि को एटीसी से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर हवाई अड्डे के कोने में लगाया जाता है और हवाई अड्डे में विभिन्न स्थानों पर लगे 80 पैनल रनवे के विभिन्न भागों से आरवीआर के सटीक मापों को साल भर 24 घंटे भेजते रहते हैं। IGI हवाई अड्डा नई दिल्ली में 2011 में पहली दृष्टि प्रणाली स्थापित हुई थी। अब तक देश में कुल 101 दृष्टि प्रणालियां लगाई जा चुकी हैं। 22 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में 47 दृष्टि और 18 भारतीय वायुसेना एयरबेस में 54 दृष्टि, और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। दृष्टि एक मील का पत्थर बन गई है, जिसकी उपयोगकर्ताओं द्वारा सराहना भी की जा रही है। मेक इन इंडिया के इस उत्पाद ने पिछले अनेक वर्षों में अनेक पुरस्कार व सम्मान प्राप्त किए हैं। दृष्टि प्रणालियों से युक्त कोहरा पूर्वानुमान क्षमताओं में सार्थक वृद्धि हुई है, जिससे विमानन क्षेत्र में सुरक्षा का उच्च स्तर सुनिश्चित हुआ है। अब विभाग द्वारा सही समय पर अधिक सटीक चेतावनियां जारी करना संभव हुआ है, जिन्हें एटीसी और एयरलाइंस को समय रहते भेज दिया जाता है। इस जानकारी से भीड़ भाड़ और देरी को कम किया जा सकता है।
देश के सभी हवाई अड्डों पर दृष्टि लगाने के अलावा हमारे पास एक मिनी दृष्टि भी है जो राजमार्गों, रेलवे और पहाड़ी मार्गों के लिए उपयोगी है। विशेष रूप से ये सेना के लिए बहुत उपयोगी होगी। ये भारत के उत्तरी गोलार्ध से पूर्व से पश्चिम भाग के लिए अत्यंत उपयोगी है और इस जानकारी को मोबाइल या कंप्यूटर पर आसानी से जीपीएस के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे सड़क पर दृश्यता जानी जा सकती है। अब कोहरे के बनने से लेकर छटने तक की हमारी समझ पहले से कहीं बेहतर है और लोगों को कोहरे के पूर्वानुमान के मुताबिक अपनी गतिविधियों को नियोजित करने के लिए संवेदनशील बनाया जा रहा है। परंतु संतोष पूर्वक बैठने का समय नहीं है। वैज्ञानिक पूर्वानुमान के कौशल को और अधिक बढ़ाने में परिश्रम कर रहे हैं ताकि कोहरे से त्रस्त क्षेत्रों में इसको बड़े पैमाने पर अपनाया जा सके। हमें आशा है कि बहुत जल्द कोहरा हमारे जीवन में खलनायक की भूमिका अदा नहीं करेगा। दोस्तों, फॉग प्रेडिक्शन के इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे देश ने तरक्की की है और कैसे फॉग प्रेडिक्शन मॉनिटरिंग स्किल्स और दृष्टि जिंदगी को आसान बनाने का काम कर रही है। इसके लिए हमें अपने साइंटिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ये उनके अथक प्रयासों का ही नतीजा है जो हमारी और आपकी जिंदगियों में तकनीक की मदद से सुधार लाने की कोशिश रंग ला रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी, ये बताना मत भूलिएगा। हम तक अपनी राय पहुंचाने का तरीका भी बहुत आसान है। आप हमें अपने सुझाव feedback@indiascience.in पर भेज सकते हैं।